Hello everyone, welcome back to Millennium Education. We were discussing the current affairs of September 2020 and the first part discussed with a lot of topics. So we will go with the remaining topic, and in this video we will complete the current affairs of September 2020. So without wasting our time, I just request all of you to please subscribe this channel and join us on Facebook and Instagram. Also, there is a link in description about our WhatsApp group from where you can get many PDFs, so you can join the group also. So let us start. So in this video we will start with defense, space and technology. Last we did up to COVID-19 updates. So let us start. Markham Capital ranked Adani Green Energy Limited as world's largest solar power generation asset owner in terms of operating, under construction and awarded projects. So Adani Green Energy Limited is the world's largest solar power generation asset owner according to Markham Capital. Next, IIT Bombay students have developed a free of cost mobile scanner app called Air Scanner. So you have to know Air Scanner is developed by IIT Bombay students. Next, Ministry of Electronics and IT has banned 118, that is 118 apps including PUBG. The most famous gaming app PUBG was banned by Ministry of Electronics and IT. This was done under the section 69A of IT Act 2009. Next, IIT Delhi उसका एक स्टार्टअप है चक्र इनोवेशन. सो ये स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है चक्र डीकॉब. और ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेनली यूज करता है, ये हेल्प करता है डिकॉन्टेमिनेट करने में N95 मास्क को विद इन 90 मिनट्स फॉर सेफ रीयूज, यानी रीयूजेबल बना रहा है N95 मास्क को. सो चक्र डीकॉब याद रखना है आपको, IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने डेवलप किया. नेक्स्ट, मोस्ट मैसिव ब्लैक होल कोलिजन ever detected has been directly observed by LIGO and Virgo scientific collaboration. So सबसे बड़ा ब्लैक होल कोलिजन देखा जा सका, just it was observed with the help of scientists from Australian National University. और जो scientific technology यूज हुई इसमें वो था LIGO and Virgo. Next, Ministry of Education has launched a free mobile app named English Pro. This English Pro mobile app is helping the teachers and the students in order to learn the इंडियन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स. सो ये बहुत ही इनोवेटिव वे में इंडियन वे में इंग्लिश वर्ड्स का इंडियन प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाएगा. नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO मीट हैव साइंड ए डील ऑफ AK-203 राइफल्स. और ये रसिया के साथ ये डील हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि AK-203 जो है रसिया के सपोर्ट से खरीदा जा रहा है या रसिया से खरीदा जा रहा है. नेक्स्ट इज इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी हैज स्टार्टेड द 11th एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी नेवल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट, ये बाईएनियल होता है, 2 साल में एक बार होता है. सो DRDO has successfully test fired hypersonic technology demonstrator vehicle HSTDV. This vehicle is a unmanned scramjet vehicle which has the ability to travel 6 times the speed of the sound. और ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है. ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के लॉन्च कॉम्प्लेक्स व्हीलर आइलैंड से लॉन्च किया गया, और इसी के साथ इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ US, Russia and China club, elite club, those who have these technology. So DRDO ने ये टेक्नोलॉजी recently टेस्ट किया है. Next, China has launched reusable experimental spacecraft on Long March 2F carrier rocket. So reusable experimental spacecraft China ने यूज किया. Next, Northrop Grumman, a space agency from USA, have
has renamed its next space station resupply ship after Kalpana Chawla. Dr. Kalpana Chawla, an astronaut of Indian descent. So Dr. Kalpana Chawla के नाम पर next space station resupply ship को नॉर्थर्न ग्रुप ने नाम डाल दिया. Next, ईरान होल्डिंग द नेवल एक्सरसाइज जुल्फिकार 99. ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान में होने वाला है ईरान का ये एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज. नेक्स्ट, आईआईटी गुवाहाटी लॉन्च सेल्फ चेक कियोस्क के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ए यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स. सो आईआईटी गुवाहाटी ने यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स एक डेवलप किया जिसका नाम है सेल्फ चेक कियोस्क के. नेक्स्ट, scientist has revealed that they detected the potential signs of extraterrestrial life on the inhospitable Venus. वीनस चूंकि रहने वाला जगह नहीं है, वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा पाया जिससे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है. दैट गैस इज phosphine gas. So on the acidic soil or acidic clouds of the Venus, the scientists have found or detected phosphine gas, जो बताता है कि microbes may have inhabited the Earth's neighbor, that is Venus में हो सकता है कि microbes develop हुए होंगे. Next, दिल्ली मेट्रो launched India's first indigenous signaling technology IATS under Make in India. So दिल्ली मेट्रो ने पहला इंडिजीनियस यानी खुद की इंडियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी IATS मेक इन इंडिया के अंदर में डेवलप किया. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू टारगेट द जनरेट 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022. सो 2022 तक 175 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी तैयार किया जाएगा या उसकी टारगेट से की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए. नेक्स्ट, आईआईटी भुवनेश्वर स्टूडेंट्स डेवलप्ड ए हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस कॉल्ड स्वासनेर. सो ये हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस जो स्वासनेर है ये डेवलप किया गया ताकि पेशेंट्स आसानी से ब्रीथ कर पाएं. नेक्स्ट, इंडियन नेवी कमेंस्ड द पैसेज एक्सरसाइज. दिस पैसेज एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इन ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन. सो ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में ये एक्सरसाइज हुआ. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस independent charges Dr. Jitendra Singh announced that prototype fast breeder reactor will be commissioned by October 2022. So अक्टूबर 2022 तक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कमीशन हो जाएगा. बट ये डेवलप हो रहा है भविनी एक जो भविनी लिमिटेड के जरिया, और ये एग्जैक्टली कहाँ है, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन इन चेन्नई तमिलनाडु. ये एग्जैक्टली वहां पर है जहां से ये रिएक्टर जहां पर डेवलप किया जा रहा है. नेक्स्ट, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड अभ्यास. अभ्यास इज ए फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास. इट इज ए हीट व्हीकल. व्हाट इज हीट? हीट मीन्स हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. So it was conducted from Balasore test range in Odisha and this was developed by DRDO. Next, indigenously developed commercial first sonar dome to be mounted on P-15 अल्फा वॉरशिप. सो पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड कमर्शियल सोनर डोम जो है किस वॉरशिप में लगाया जाएगा? P-15 अल्फा वॉरशिप में. नेक्स्ट, इंडिजिनियसली डेवलप्ड पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्टेड फायर्ड फ्रॉम चंडीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा. सो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे मिसाइल्स का नाम आ रहा है जो लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं. ये जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉर्डर टेंशन अराउंड द चाइना उसकी वजह से है. तो आपको जस्ट याद रखना है कि ये जो सारे मिसाइल्स या जो हैं उनका फीचर्स क्या है और कहाँ से इसे लॉन्च किया जा रहा है. सो पृथ्वी 2 was tested fired from Chandipur coast of Odisha. Next, the 4th edition of Japan India Maritime Exercise JMEX kicked off in the Northern Arabian Sea. So North Arabian Sea में ये exercise JMEX conducted किया गया है. Next, IIT Madras has successfully developed MAUSIC.
मौसिक एक इंडिजियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट, ब्रह्मोस विच इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम आईटीआर कोस्ट ऑफ बालासोर इन उड़ीसा। सो ये उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, ये आपको याद रख। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन इज Reliance Industries subsidiary RRVL, that is Reliance Retail Ventures Limited, has acquired Future Group। इसी के अंदर बिग बाज़ार भी आता है, आपको याद होगा। नेक्स्ट, India's GDP contract by -23.9% in the April-June quarter of 2020. This was due to the present scenario of COVID-19, and this report was presented by National Statistical Organization, which comes under Ministry of Statistical Program and Implementation. Next, ICICI Prudential Life Insurance has introduced a AI powered voice chatbot called Ligo. This Ligo on Google Assistant. This is Google is launched on Google Assistant. Ligo is a ICICI Prudential Life Insurance customer service chatbot. Next is ICICI Reserve Bank of India on Friday has revised the priority sector lending. पहले तो आप समझ ले व्हाट इज PSL। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब होता है कि लोन का 40% अमाउंट जो है कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए। इसको रिवाइज किया है RBI ने। इसके अंडर में नया सिस्टम यह है कि RBI टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन द लाइन ऑफ इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज। नेक्स्ट, बैंक फिनांस टू स्टार्टअप 50 crore loans to farmers for installation of solar power plants and to give loan for setting up of the compressed biogas plant. So loans की प्रायोरिटी सेक्टर्स में स्टार्टअप्स को इन दो कैटेगरी में यानी इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए लोन अब देना होगा। ये RBI ने ऐड किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। नेक्स्ट, Vodafone Idea has announced that its new unified brand identity will be named as VI. So आपने देखा होगा कि Vodafone Idea का ब्रांड नेम चेंज हुआ और उसका नया नाम है VI. Next, Reserve Bank of India has seized the banking operation by Aditya Birla Idea Payments Bank. So Aditya Birla Idea Payment Bank का जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और ये 28 जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ 115th फाउंडेशन डे ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेशल इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्वार्टरली 10 लाख रुपए मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में। सो ये याद रखना है आपको, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस वाज लॉन्च बाय FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और ये एक पार्ट है ईज इनिशिएटिव का। अंडर द ईज इनिशिएटिव the government has given the index of best performing public sector banks, और इस इंडेक्स के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आर द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, SBI हैज लॉन्च ए न्यू लोन प्रोडक्ट कॉल्ड सफल। ये किसके लिए है? सफल लोन प्रोडक्ट है फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स, जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करते हैं उनके लिए सफल प्रोडक्ट SBI ने लॉन्च किया है, और ये उन्हीं लोग को दिया जाएगा जिनके नाम पे कोई पुराना क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू सरपास 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क इन इंडिया। नेक्स्ट इज मूडी जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, हैज प्रोजेक्टेड द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया टू 11.5%, that is 11.5% in fiscal year 2020-21. Next, Prime Minister Narendra Modi has recently launched पेट्रोलियम सेक्टर का कुछ प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में। इसी के अंदर एक प्रोजेक्ट आता है जो कि हमारे कुछ एरिया को कवर कर रहा है, जिसमें पारादीप
हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंशन प्रोजेक्ट जो है इसमें एडेड है और यहाँ का 2 LPG प्रोडक्ट भी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, और ये बिल क्या करेगी, दिस विल गिव द पावर्स टू रीस्ट्रक्चर द कोऑपरेटिव बैंक्स टू RBI, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो पावर होगा वो RBI के पास शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज 20,000 crore in public sector banks in order to meet the regulatory requirements. So गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज करेगी। नेक्स्ट, RBI mandated the banks to fully automate NPA recognition by जून 31, 2021, यानी जून 31, 2021 तक हर बैंक को फुली ऑटोमेटेड NPA रिकॉग्निशन बना करके रखना होगा। नेक्स्ट, ICICI होम फाइनेंस लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम, ये एक न्यू होम लोन स्कीम है फॉर स्किल्ड लेबर्स। सो इसके अंदर में इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, पेंटर्स, ग्रोसरी स्टोर्स सारे लोग आ जाते हैं और ये लोन अपना घर ड्रीम लॉन्च किया गया है फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ दिल्ली। सो ये इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ दिल्ली के लिए ICICI होम फाइनेंस ने ये लोन लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑब्जर्व द राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट, यानी राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक विजन दिया है कि इसका कुछ सर्टेन लिमिटेशन है एंड देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द राइट टू प्रोटेस्ट एंड द राइट टू मोबिलिटी ऑफ अदर्स। ये आपको याद रखना है, रिसेंट जजमेंट है। SBI स्टार्टेड वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन आसाम। नेक्स्ट, के सुब्रमण्यम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया के, के सुब्रमण्यम स्टेटेड इंडियाज नॉमिनल GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 19% इन फिस्कल ईयर 2022। आपको ईयर भी फिस्कल ईयर भी देखना है और ये 19% नॉमिनल GDP, पॉइंट इज हेयर नॉमिनल GDP इंक्रीज करेगा 19%। Okay, next is SEBI constituted a technical group on social stock exchange under Harsh Kumar Bhanwala. Next, external debt increases almost 3% at the March end और वो 559 million अप्रॉक्स इंक्रीज किया है। तो आपको जस्ट ये 3% याद रखना हो कि एक्सटर्नल डेब्ट कितना इंक्रीज किया है, वो 3% इंक्रीज किया है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑल्सो डिप बाई 31% इन अप्रैल अगस्त, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो होता है वो भी 31% उसमें गिरावट हुई है, जो कि अप्रैल अगस्त के क्वार्टर में आपको 1,92,718 करोड़ ही कलेक्ट किए गए हैं बाय नेट डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च सफल सेफ पे। सो सेफ पे एक नया कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी है बाय IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये वो गार्ड अप्रोच के थ्रू जो है अचीव करेगा। इसके पीछे अचीव करने का जो प्रोसेस है वो है 5 पिलर्ड गार्ड अप्रोच। नेक्स्ट इज IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस एज द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। सो ये इंडिया की सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज है LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसमें से LIC जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और GIC जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांकेशन सिस्टम, दैट इज CTS चेक। आपने देखा होगा CTS चेक, उसके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2021 एंड इट विल फॉर अमाउंट ऑफ 50,000 एंड अबव। और कितने रुपए के लिए ये होगा, जो 50,000 से ऊपर के जो चेक्स होंगे उनके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द 3-member कमिटी हेडेड बाय मीता मक्खन टू फंक्शन एज द एडहॉक इंटरिम MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों ने मिलकर एक नया साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है फॉर ऑनलाइन फिनेंशियल फ्रॉड्स। सो ऑनलाइन फिनेंशियल फ्रॉड्स के बचने के लिए एक
साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया है बाई फ्लिपकार्ट एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे समिट। सो समिट एंड कॉन्फ्रेंस, इंडिया अटेंडेड बिम्स्टेक मीट under the chairmanship of Sri Lanka. It was held virtually. Next is India will host the summit of Council of Heads of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, in November 2020. You just have to know कि 30 नवंबर 2020 को इंडिया will host the Councils of Heads of SCO summit. Next is G20 Foreign Ministers Extraordinary Meeting was held virtually ऑन, और इसका चेयरमैनशिप है सऊदी अरबिया के पास। आपको बस यही याद रखना है कि G20 के बाकी जितने भी समिट होंगे उसका चेयरमैनशिप हमेशा सऊदी अरब विल बी द चेयरमैन। एंड इस साल का उसका अपना एक थीम है, वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पाटिल attended the BRICS Cultural Minister Meet under the chairmanship of Russian Federation. Next is first World Solar Technology Summit was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and it was organized by ISA, that is International Solar Alliance, and FICCI, that is हमारा फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ISA के साथ कोलैबोरेट करके फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया और इसका एम जो है वो है लेट अस मेक द सन ब्राइटर। नेक्स्ट इज द नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव वाज इनॉग्रेटेड और एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट इज एक क्वाड नाम आएगा आपके न्यूज में, आप देख रहे होंगे कि क्वाड कंट्रीज क्या है। सो क्वाड कंट्रीज का जस्ट आपको नाम याद रखना है और इंडिया विल सून होस्ट द क्वाड मीट। सो वो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड हमारा इंडिया। नेक्स्ट इज 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक वाज वर्चुअली लॉन्च्ड एंड इसका इस साल का चेयरमैनशिप है टू दी होस्ट कंट्री भूटान। तो ये वर्चुअली हुआ है, लेकिन अगर होता प्रेजेंटली तो ये भूटान में होता और इसका चेयरमैनशिप भी अभी भूटान के पास है, लेकिन ये 35th सेशन था। 36th सेशन विल बी होस्टेड बाय दी बांग्लादेश। नेक्स्ट इज इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली held a virtual summit on 5G टेक्नोलॉजीज। सो इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट का एक वर्चुअल समिट हुआ है 5G टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट इज इंडिया थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वाज हेल्ड इन हनोई, वियतनाम। सो वियतनाम में ये हुआ थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। नेक्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली और ये फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग था। नेक्स्ट फोर्थ एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और इसका एक थीम है, वो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज केरला इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो ये फोर्थ एडिशन होगा ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का। नेक्स्ट इज 10th East Asia Foreign Ministers Meet was held virtually and it was attended by the V Muralidharan जो कि Ministry of State for External Affairs हैं। It was chaired by Vietnam. So 10th East Asia Summit was mainly attended by V Muralidharan और ये चेयर किया गया है बाय वियतनाम। नेक्स्ट इज 73rd सेशन ऑफ हू साउथ ईस्ट एशिया रीजन वाज हेल्ड वर्चुअली एंड इट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड। सो थाईलैंड के अंडर चेयरमैनशिप में ये हू साउथ ईस्ट एशिया रीजन का 73rd समिट हुआ। बट आपको याद एक और रखना है कि डायरेक्टर ऑफ हू साउथ ईस्ट एशिया रीजन है पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट इज प्रहलाद सिंह पाटिल जो कि 17th SCO कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इन्होंने हेल्ड किया। सिमिलरली आपने देखा होगा 5th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीट भी प्रहलाद सिंह पाटिल ने उन्होंने अटेंड किया था।
और इन्होंने एक आर्गुमेंट को सपोर्ट किया है टू सेलिब्रेट 2021 एज द ईयर ऑफ कल्चर ऑफ एचसीओ. नेक्स्ट इज एशियन इंडिया मिनिस्ट्रल मीटिंग हेल्ड वर्चुअली एंड इट वाज को चेयर्ड बाय एस जयशंकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड वहाँ के थाईलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन दोनों ने मिल करके इसे को चेयर किया है. नेक्स्ट इज वैभव समिट. इसका मेन फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट. वैभव समिट was inaugurated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2020 और ये हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पर इसे लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के चार्ज में है, उन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 को चेयर किया. So what is Arogya Manthan 2.0? This is the celebration of the second anniversary of अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत जिसे आपको जानते थे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये उसी को सेलिब्रेट किया गया है आरोग्य मंथन 2.0 के नाम पे. नेक्स्ट आपको याद रखना कृतज्ञ समिट, कृतज्ञ हैकाथॉन was recently launched by ICAR. So ICAR recently launched कृतज्ञ हैकाथॉन. So कृतज्ञ means कृषि रासायनिक ज्ञान, और ये लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन के अंडर में. नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस एंड ब्रिटेन विल को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट. सो द ग्लोबल क्लाइमेट समिट विल बी होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड ब्रिटेन एंड इट विल बी होस्टेड as the 5th anniversary of the landmark 2015 पेरिस एग्रीमेंट. और इसी एग्रीमेंट के चलते आप देखेंगे ISA भी बना था और इसी एग्रीमेंट के वजह से ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो मनाया जा रहा है 12 दिसंबर को. नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ एंड फर्स्ट वर्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2020 वाज हेल्ड वर्चुअली, और इसका एक रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली में हैव 8 months of 32 degrees सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. यानी 2100 ईस्वी तक आपके दिल्ली में 8 महीने ऐसे होंगे जिसमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दिल्ली में. नेक्स्ट 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विल बी हेल्ड इन जनवरी 2020, 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में इन गोवा. पहले ये नवंबर में होने वाला था बट इसे शिफ्ट कर दिया गया है जनवरी में, और होगा कहाँ पे? गोवा में. ये 51st एडिशन. सो हियर इज रैंकिंग एंड रिपोर्ट. यू कैन सी अमूल जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन कंपनी है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन डायरी कंपनी टू इंटर द रैबो बैंक्स एनुअल लिस्टिंग ऑफ ग्लोबल डायरी टॉप 20. सो अमूल कंपनी जो है रैबो बैंक्स एनुअल लिस्टिंग में टॉप 20 कंपनीज में नाम इसका आया है एट द रैंक ऑफ 16. द टॉप कंपनी इज स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी टॉप मिल्क मार्केटिंग कंपनी है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय US, द चाइनीज नेवी इज नाउ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ 350 ships and submarines. Next, US is the most advanced navy टेक्नोलॉजिकली US के पास मोस्ट एडवांस्ड नेवी है. नेक्स्ट इज टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट, और उसने यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2021 लॉन्च किया. इसके अंदर जो है इंडिया से कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने टॉप 300 के अंदर जिसका नाम आया हो, बट अराउंड 63 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द रैंकिंग, जो कि 500 रैंकिंग में इंडिया की IISc बेंगलोर की जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की टॉप रैंकिंग कंपनी है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट. नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का पोजीशन है 48 और टॉप जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड. सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 48 है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक हैज स्टॉप्ड द पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और ये मेनली इरेगुलरिटीज़ हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ में और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में, ये उसके वजह से
वर्ल्ड बैंक ने स्टॉप कर दिया है पब्लिकेशन ऑफ डूइंग business report. Next, UN Women and UNDP released a new data, or according to this, women will have a negative impact of COVID-19 and there will be a large chance of gap between men and women in poverty. Next, Vice President Venkaiah Naidu recently released State of Young Child in India report. ये रिपोर्ट जो है मेनली मेजर करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन द कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए इन्वायरमेंट इंडेक्स ऑल्सो. द टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द इन्वायरमेंट इंडेक्स आर केरला, गोवा, पंजाब, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश. दीज आर इन्वायरमेंट इंडेक्स के अंदर में केरला, गोवा, पंजाब, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स. नेक्स्ट इज अंडर द वेल-बीइंग ऑफ द चिल्ड्रंस, Kerala, Tripura, Goa, Mizoram and Tamil Nadu are the top performing states और ये वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन में है. नेक्स्ट जो लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है वो है बिहार फॉलोड बाय यूपी. नेक्स्ट इज NSSO और NSO that is National Statistical Office released its report on household social consumption education in India report. According to this, the most literacy जिस स्टेट का है वो है केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री. और ये रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 की जो है लिटरेसी रिपोर्ट दे रही है. और अकॉर्डिंग टू दिस जो है केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी. अपार्ट फ्रॉम दैट द आंध्र प्रदेश हैज़ वाज एट द बॉटम, यानी आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट सबसे कम है 66.4%. नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल लिटरेसी ऑफ इंडिया इज 77.7% एंड रूरल एरियाज़ में 73.5% लिटरेसी और अर्बन एरियाज़ में 87.7% की लिटरेसी है. नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन हैज़ रिलीज द 4th edition of Business Reforms Action Plan rankings of the states and UTs. According to this, you can see that it will indicate the ease of doing business of the states. Or according to this, Andhra Pradesh remained the top state followed by UP and Telangana to have the large amount of ease of doing business. और इसके अलावा यूटीज़ में दिल्ली ने टॉप किया है. नेक्स्ट, ये मैंने पहले आपको बता दिया ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ बीन द मोस्ट नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया. और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सेकेंड और थर्ड रैंकिंग पे है. ये ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स जो है वो निकालती है इंडियन बैंक एसोसिएशन. नेक्स्ट देखते हैं हम, इन अकॉर्डेंस विद दी WHO report, the Global Trans Fat Elimination Report 2020, there will be less than 1% of total energy intake जिसमें ट्रांस फैट होगा. 1% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक में ट्रांस फैट होगा और ये लिमिटेशन जो है 2023 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हांगकांग इज़ द टॉप कंट्री एंड इंडिया रिमेंड एट 105. तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 है. नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी ranking of the states on support of startup ecosystem. This was launched by DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Trade. और ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग there are 2 categories. The category 1 is category Y. इसके अंदर में सारे यूटीज आते हैं एक्सेप्ट दिल्ली और सारे स्टेट्स आते हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट आसाम. यानी वाई कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स आते हैं एक्सेप्ट आसाम और यूटीज़ में दिल्ली को छोड़कर. सिमिलरली एक्स कैटेगरी में आते हैं ऑल अदर स्टेट एंड यूटीज़ ऑफ दिल्ली. एक्स कैटेगरी में गुजरात वाज द बेस्ट परफॉर्मर और वाई कैटेगरी में जो है सिक्किम वाज एट द बॉटम प्लेस एंड अंडमान निकोबार वाज द बेस्ट स्टेट. सो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो गुजरात सबसे ज़्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट इज IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स. IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर फॉलोड बाय हेलसिंकी एंड ज्यूरिच आर द टॉप 3 स्मार्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड हैदराबाद वाज द टॉप इंडियन सिटी और इंडियन स्मार्ट सिटी
at the place of 85 position according to IMD Smart City Index. Next देखते हैं Indian Happiness Report 2020. The first edition of Indian Happiness Report 2020 was prepared by Professor Rajesh K. Pilania. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉलोड बाय पंजाब एंड अंडमान निकोबार आइलैंड और लीस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट आर उड़ीसा, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़. यहाँ पर सबसे कम हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020. वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालती है और अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया का पोजीशन 116 है. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया का पोजीशन 116 है अमॉन्ग 174 कंट्रीज. 174 कंट्री में 116 पोजीशन पे है हमारी कंट्री इंडिया. नेक्स्ट टॉप कंट्री है सिंगापुर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन स्पॉटेड एट 89 पोजीशन. सो रिस्क इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 89 है और सबसे ज़्यादा रिस्क है वनाउतु कंट्री, ओके, अमॉन्ग 181 कंट्रीज. सो ये आपको याद रखना है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बुक्स एंड ऑथर्स. द Bollywood filmmaker Karan Johar recently released its children's picture book named The Big Thoughts of Little Love. और इससे पहले उन्होंने अनसुटेबल बॉय 2017 में लिखी थी. नेक्स्ट इंडियन राइटर रामचंद्र गुहा हैज़ ऑथर्ड a new book called The Commonwealth of Cricket. You just have to know The Commonwealth of Cricket is written by the Indian writer Ramchandra Guha. नेक्स्ट देखते हैं ए न्यू बुक टाइटल लेट अस ड्रीम इज सेट टू रिलीज बाय पोप फ्रांसिस. सो पोप फ्रांसिस ने इसमें अपने न्यूमरस एक्सचेंजेस के बारे में बताया है जो पोप फ्रांसिस अपने बायोग्राफर ऑस्टिन इवरी के साथ करते हैं. नेक्स्ट ए न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस. ये एक बुक है, ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज की है, उन्होंने लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू सीक टू इनकरेज 200 मिलियन स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स एंड ग्रीनर लाइफस्टाइल्स. सो उन्होंने ये बुक इसलिए लॉन्च किया है ताकि 200 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रीनर लाइफस्टाइल को अपनाएं. सो बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस. दिस वाज लॉन्च बाय यूएनईपी. यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी में. नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टोनोमिक्स. 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इज ए ई बुक रिटन बाय गुनमीत सिंह चौहान. नेक्स्ट नथिंग टू लूज माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स. ये दो बुक हैं, नथिंग टू लूज एंड माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स. दिस वॉज ऑथर्ड बाय M.A. आनंद सीला. नेक्स्ट राधा M. Nair has announced his first book called Breaking the Cocoon at 40. Next, interior designer Gauri Khan has authored his first book titled My Life in Design. So Gauri Khan जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनकी पहली किताब का नाम है My Life in Design. Next, Arundhati Roy, the prominent author, has wrote a new book called Azadi, Freedom, Fascism and Fiction. Next, the first volume of memoirs of former US President Barack Obama is set to be launched in the title name A Promised Land. A Promised Land ये एक वॉल्यूम ऑफ मेमोयर है of US President Barack Obama. Next, the Voices of Dissent. This is a new book titled The Voices of Dissent, was authored by historian Romila Thapa. नेक्स्ट सिर्फ विकास खन्ना जिन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है फॉर हिज इनिशिएटिव फीड इंडिया. सो फीड इंडिया इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने एक बुक में लिखा है द किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड. इस बुक में उन्होंने अपने फीड इंडिया इनिशिएटिव के बारे में लिखा है और विकास खन्ना की ये बुक है. नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक called A Bouquet of Flower written by Dr. Krishna Saxena. Dr. Krishna Saxena पहली लेडी हैं जिन्होंने PhD का डिग्री हासिल किया था फ्रॉम लखनऊ इन 1955. Committee and Memorandum of Understanding. Niti Aayog constitutes multi-dimensional poverty index coordination committee under the chairmanship of Miss Sanyukta Samadar, who is advisor to सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एडवाइज़र हैं वो.
Next, government to form a committee headed by the former Comptroller and Auditor General Rajiv Mehresi for assessment of relief to bank borrowers. Next, central government has constituted an empowered group of ministers committee in order to see the corporatization of ordnance factory boards under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को देखने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बनाई गई है, जिसमें चेयरमैन होंगे राजनाथ सिंह। अभी प्रेजेंटली 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, इन्होंने मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की कोशिश की है 16 मेंबर्स की। ये देखना चाहते हैं कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर कैसे हुआ। इस कमेटी के हेड होंगे KN दीक्षित, जो कि चेयरमैन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SIDBI टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। इसके अलावा भी गुजरात ने भी ये सेम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग SIDBI के साथ साइन किया है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेटअप ए कमिटी ऑफ 5 डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन। 5 मेंबर की डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स की एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बैठक बुलाएगी, जिसमें वो देखेगी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी वायलेशंस हुई हैं, सो उनको सही करने के लिए 5 डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स की कमेटी सुप्रीम कोर्ट बैठक बुलाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमेटी लेड बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, और ये जो है मेनली राजेश पंत है, जो प्रूव करेंगे, जो तफ्तीश करेंगे इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द स्नूपिंग बाय चाइनीज फर्म्स। नेक्स्ट, सेंटर हैज सेट अप ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय अजय तिर्के टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर लैंड लीजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन ऑर्डर टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। पोषण माह भी सितंबर में मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ITBP के साथ साइन की है इन ऑर्डर to promote adventure sports activities in Teri Lake of the उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की तेरी लेक में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए ITBP के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने साइन किया। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड has signed a memorandum of understanding with Ministry of Ayush in order to develop and promote medicinal plant cultivation. Next देखते हैं, India has entered a memorandum of understanding with Denmark in the field of intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन में डेनमार्क के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया ने साइन किया इन सितंबर। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज हैज़ एक्सटेंडेड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया इंडियन रेलवेज ने फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर IIT कानपुर देखेगी किस तरीके से इसे मॉडर्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, सो दिस इज ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरीज वन लाइनर है, जस्ट आपको याद रखना होगा कि क्या प्रोफेशंस हैं जिन लोगों का इस साल देहांत हुआ। सो इन सितंबर डॉक्टर S पद्मावती, इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन एट एन NIH न्यू दिल्ली, डाइड ड्यू टू COVID-19। सो ये इंडिया की पहली ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी और पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। इसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट और 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी recently passed away, and he passed away due to lung infection at Army Research and Referral Hospital, New Delhi. He was the Prime Minister who was conferred with Bharat Ratna in 2019 and Padma Vibhushan in 2008, और इनके ही बर्थडे के दिन पर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ही वॉज ओनली नॉन प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट,
The co-creator of these famous cartoon series Scooby-Doo, Joe Ruby passed away. So Joe Ruby जो कि Scooby-Doo के क्रिएटर थे, वो उनका देहांत हो गया. नेक्स्ट, द हेड सीयर ऑफ इडनीरमुट केशवनंता भारती पास्ड अवे. सो ये बहुत बड़े, इनका नाम जो है पोल साइंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और केशवनंदा भारती केस से रिलेटेड है, और ये इडनीरमुट के सीयर थे, उनका इस साल देहांत हो गया है. नेक्स्ट, गोविंद स्वरूप, the father of India's radio astronomy, passed away. Social activist Arya Samaj leader Swami Agnavesh recently passed away, and he was mainly known for his work against slavery and bonded labor. Next, former president of Mali Moussa Traoré passed away at the age of 83. Next, veteran scholar of Indian classical dance, art, architecture and art history, Mr. Dr. Kapil Vatsyayan passed away. He was the founder director of Indira Gandhi National Center for Arts. So Dr. Kapil Vatsyayan जो कि फाउंडर थे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के लिए. नेक्स्ट, राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटक अशोक गस्ती passed away due to COVID-19 and he belonged to the Raichur district, Karnataka. Next, the shortest serving governor of RBI, Amitabh Ghosh, recently passed away. He served for 21 days as the governor of RBI in 1985. Next, the former Prime Minister of Canada, John Turner, passed away recently and he belonged to Canada. So, क्योंकि वो Prime Minister of Canada हैं John Turner. Next, the first man to climb Mount Everest 10 times recently passed away, और उनका नाम है नेपाल के अंग्रीटा शेरपा. इन्हें निक नेम स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता था. नेक्स्ट, US सुप्रीम कोर्ट जस्टिस Ruth Bader Ginsburg, dubbed as Notorious RBG, recently passed away at the age of 87 due to pancreatic cancer. Next, Suresh Angadi, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे, रिसेंटली पास्ड अवे, और वो लोकसभा MP थे फ्रॉम कर्नाटक बेलगावी. नेक्स्ट, जो कैबिनेट के पहले मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट के पहले मिनिस्टर जिनका देहांत कोविड-19 की वजह से हुआ है. नेक्स्ट, legendary singer S.P. Balasubramaniam passed away recently. He was known for his famous musics. And next, veteran atomic scientist and former chairman of Atomic Energy Commission Shekhar Basu recently passed away due to COVID-19. Next, renowned economist डॉक्टर ईसर जज आलूवालिया पास अवे, जिनके बारे में मैंने पहले भी अपॉइंटमेंट के केस में बताया कि इन्हें रिसेंटली ये रिटायर हो गए और इनके जगह पर दूसरे जो है पोस्ट पे लोग अभी अपॉइंट हुए हैं. फॉर्मर क्रिकेटर कमेंटेटर डीन जोन्स पास अवे. मेजर जसवंत सिंह, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये मेजर जसवंत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका पोस्ट था, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ये रहे हैं. नेक्स्ट, आसाम फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर सैयद अनवरा तैमूर पास्ड अवे रिसेंटली, और ये आसाम की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, सैयदा अनवरा तैमूर. नेक्स्ट देखते हैं डेज एंड थीम्स. सो वर्ल्ड कोकोनट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन September 2. इस साल का इसका थीम रहा इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 September एवरी ईयर ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा, जो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता जिन्होंने बनाया, उनके डेथ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 September को, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में पीस के लिए. इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 7 September, और इस साल 7 September 2020 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज. नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने इस साल एक ऑनलाइन स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल स्पैरो जो है लॉन्च किया है. सॉरी, मिस्टेकनली यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है, इसे करेक्ट कर दूंगा, बट यहाँ देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो पोर्टल फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 September. इंटरनेशनल लिटरेसी डे का इस साल का फोकस जो है इस चीज़ पे रहा कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड. नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 सितंबर। सो इस साल भी 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 सितंबर एवरी ईयर, और इस साल उसका थीम रहा वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और ट्विटर इंडिया ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है टू प्रिवेंट सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। नेक्स्ट 15th नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 11 एवरी ईयर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो कि सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर हर साल मनाया जाता है, इस साल वो सेलिब्रेट किया गया है 12 सितंबर को। बट इसको समझ के रखें कि ये सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सो हर साल सैटरडे का डेट चेंज हो सकता है, इस साल इसे 12 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट हिंदी दिवस या हिंदी डे विच जो कि 1953 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो 14 सितंबर को मनाया गया इस साल। सो ये नेशनल हिंदी डे है, इसको नेशनल हिंदी डे बोलते हैं। और हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड है। इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 सितंबर एवरी ईयर। नेशनल इंजीनियर्स डे जो कि मनाया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू एम विश्वेश्वरैया, जो कि इंडिया के उनको फादर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज जिन्हें बोला जाता है, और वो फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी इनका एक टाइटल है। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने वर्चुअली सेलिब्रेट किया हिमालय दिवस सितंबर 9 को उत्तराखंड में। सो 9 सितंबर को जो है हिमालय दिवस मनाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्ड 6 सितंबर एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। सो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस साल का इसका थीम रहा ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और इस साल 35th ईयर था वीना कन्वेंशन का, जो कि साइन किया गया था टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। नेक्स्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर। इस साल का इसका थीम रहा हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट वर्ल्ड बम्बू डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 सितंबर एवरी ईयर। द थीम वाज बम्बू नाउ। नेक्स्ट the world water monitoring day which is observed on 18 September, and this year theme was solve water. Next international equal pay day. So international equal pay day which is observed on 18 September 2020 because ये जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी वुमेन्स और मेंस के इक्वल पे के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 सितंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट इंटरनेशनल रेड पांडा डे। सो रेड पांडा जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उसके लिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा के लिए मनाया जाता है ऑन 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। लाइक सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड फास्टेड डे। सिमिलरली 3rd सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस विच इज ऑब्जर्व ऑन 21st सितंबर। दिस ईयर थीम वाज शेपिंग पीस टुगेदर। वर्ल्ड अल्जाइमर डे is observed every year and on 21st सितंबर। और अल्जाइमर डे का इस साल का थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। डिमेंटिया भी एक बीमारी है जो रिलेटेड है अल्जाइमर से। नेक्स्ट वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 सितंबर एवरी ईयर। दिस ईयर थीम वाज 5 rhino species forever. Okay, 5 rhino species forever this year theme was. Next, the International Day of Sign Language is observed on 23rd September. This year theme was Sign Language are for everyone. Sign language are for everyone. This year theme. Next, World Maritime Day. World Maritime Day 2020 is observed on 24th September. This year the theme of World Maritime Day is Sustainable Shipping for a Sustainable Planet. Next,
World Pharmacist Day, which is observed on 25th September every year. The theme of this year is Transforming Global Health. World Pharmacist Day का इस साल का थीम है Transforming Global Health. Next, India observed Antodaya Divas on 25th September, and it is observed on the birth anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके नाम पे अंत्योदया दिवस मनाया गया. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर एवरी ईयर. नेक्स्ट, इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर एवरी ईयर. So this year theme was environment health, a key public health intervention in the disease pandemic prevention. Next, World Tourism Day. It is observed on 27 September every year. The theme was tourism and rural development. Tourism and rural development was the theme of World Tourism Day, tourism and rural development. Next, it was during a event in New Delhi, Dharmendra Pradhan launched Sathi app for hospitality industry. So, World Tourism Day के दिन धर्मेंद्र प्रधान ने साथी ऐप लॉन्च किया है फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री. देन वर्ल्ड रेबीज डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर. दिस ईयर थीम वाज एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, commonly known as Access to Information Day, which is observed on 28 September every year. The theme of this year was Access to Information, Saving Lives, Building Trust and Bringing Hope. Access to Information, Saving Lives, Building Trust and Bringing Hope. Next, the World Heart Day, which is observed on 29 September annually. The theme was Use Heart to Beat Cardiovascular Disease. Next, International Translation Day is observed on 30th September. The theme was Finding the Words for a World in Crisis. Finding the Words for a World in Crisis. और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को सारा करंट अफेयर्स पसंद आएगा और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे. इसके अलावा अगर आपको कंसाइज मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एडमिन को, जो आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.